Good morning, class. So today we are going to start this fourth chapter, that is biodiversity and its conservation. This is your fourth unit, a chapter. So first we will see in this unit the introduction of biodiversity. The term biodiversity has been introduced by Walter Rosen in 1986. Okay, so Walter Rosen was the person who has first introduced the term biodiversity in 1986. And in biodiversity, it has been estimated that more than 50 million species of plants, animals, and microorganisms are existing in the world. So you can see how vast this biodiversity is, our biodiversity is. So around or more than 50 million species of plants, animals, and microorganisms exist in our world. And out of this 50 million species, only 1.4 million has been discovered. So matlab overall it is assumed or it is estimated that 50 million, more than 50 million species of plants, animals, and microorganisms exist, and out of which only 1.4 million species has been identified. That is less than 2%. Okay, only less than 2% till now we have discovered, human being has discovered, and rest 98% is still not known or not discovered. Okay, so and each of these species has adapted to life in specific environment, and each of these species has adapted the environment in which they live. Either they live in the sea or in polar region where there is where the earth is surrounded of only ice, tropical rainforest or desert, whatever it might be, the species which lives at that particular ecosystem adapts its nature. Okay, adapts its own environment. So now we will see the definition of biodiversity. The number and variety of plants, animals, and other organisms that exist on the planet is known as biodiversity. It's very simple. The number and variety. The number and variety of plants, animals, and other organisms that exist on planet is known as biodiversity. Second definition is biodiversity also referred to the number or abundance of different species living within a particular region. एक particular area में या फिर all over our earth जितने भी species हैं, चाहे वो plant के हो, animals के हो, right? या other organism like microbes है, bacteria है, virus है ना, कुछ भी है, protozoa है, जो भी है, या parasites है, anything it might be. तो ये सारे स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे रहते हैं या एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. देखो, और हमारे जो एनवायरनमेंट है या हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितने बहुत वास्ट है इन अर्थ. यहाँ पे डेजर्ट भी है, रेनी फॉरेस्ट भी है, कोरल रीफ्स भी है. कोरल रीफ्स कहाँ पे मिलता है? अंडर द ओशन और सी, राइट. तो हर जगह एवरीवेयर जहां भी चले जाओ, आइदर अगर आप रेनी फॉरेस्ट चले जाओ या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट चले जाओ या फिर डेजर्ट में चले जाओ, है ना, या फिर सी के अंदर चले जाओ, इन द डीप डेप्थ ऑफ द सी, you will find some sort of organism or species living there. It is possible that you might not be able to see it through your naked eyes,
but there is organism, there is life existing there. Either it might be any part of the world, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में कोई ना कोई स्पीसीज you will definitely find. और यही जो हमारा जो अर्थ है ना, उसकी स्पेशलिटी है कि कोई भी एरिया हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी जगह हो, चाहे वो समंदर के अंदर हो या फॉरेस्ट है और आइस है, कहीं पे भी है, यू विल फाइंड आउट लाइफ, लाइफ मिलेगी. एंड वहां जस्ट नॉट लाइफ इज देयर, दे हैव कि सर्वाइवल, उस कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, अगर वो वहां पे सरवाइव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए, उसके सरवाइव करने लायक वहां पे फूड मौजूद है, राइट? फूड इज अवेलेबल ओवर देयर, फ्यूल इज देयर, शेल्टर इज देयर फॉर देम where they are living, right? So everything the nature has provided. So the richness of biodiversity depends on the climatic condition and the area of the region. ठीक है, मगर जैसे कितने स्पीसीज कोई एक पर्टिकुलर एरिया में होंगे, मतलब कितने ज्यादा स्पीसीज रह सकते हैं, वो किस चीज से डिफाइन होता है या कौन डिटरमाइन करता है कि उधर जो एरिया है, जो एक पर्टिकुलर रीजन है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, राइट? एंड और वो एरिया कौन सा है, लाइक अगर आप आइस, जहाँ पे पोलर रीजन में चले जाओ, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम पोल में आप अगर पहुंच गए, तो वहां पे आपको लाइफ फॉर्म मतलब बहुत कम मिलेगा, राइट? बहुत कम, ना के बराबर है. क्यों? क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जो दो इवन दो स्टिल देयर इज आल्सो लाइफ फॉर्म, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और किसी भी फॉर्म, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, या फिर जैसे पेंगुइन्स हैं, ये सब जो जो रहते हैं, पोलर बियर्स हैं, राइट? तो है, बट बायो मतलब जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा नहीं है, वो लिमिटेड है वहां पे, राइट? और जैसे अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में आ जाओ या फिर रेनी फॉरेस्ट में चले जाओ या फिर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में चले जाओ, या फिर अगर आप एक सिंपल से पॉन्ड का भी इकोसिस्टम ले लो, तो वहां पे भी आपको डाइवर्सिटी मिलेगा. तो ये जो रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी में, मतलब कितने स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने स्पीसीज मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है कि वहां का एनवायरमेंट कैसा है, फाइन, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, और वो एरिया कौन सा है. एंड इन बायोडाइवर्सिटी either an organism is the largest one in size and the smallest one, which we are not even able to see through our eyes, naked eyes, has their own importance. बायोडाइवर्सिटी में चाहे एक बहुत, इवन अगर एक एलिफेंट है तो उसका भी इम्पोर्टेंस है, और अगर एक एमोइबा है तो उसका भी इम्पोर्टेंस है. ओके, मतलब एवरीबडी हैज देयर ओन इम्पोर्टेंस. अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है, इफ somebody is there, some species is there, it means they have their own specific, requirement or ability. And most, you will see most plants and animals depends on one another, right? जो भी प्लांट्स और स्पीसीज हैं, प्लांट्स और एनिमल है, वो है, ये क्या करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है.
बायोडाइवर्सिटी आपको कितना टाइप का मिलेगा? 3 टाइप्स का बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है। फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। ओके, so first is genetic diversity, second is specific species diversity, and third is community or ecosystem diversity. So now we will see one by one. First one we will see genetic diversity. So genetic diversity is describe the variation in the number and types of gene as well as chromosome present. ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है ना, और जो क्रोमोसोम का जो पैटर्न है उसमें उसको डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे अगर आप डॉग्स का एग्जांपल ले लो, तो देयर इज अ, जैसे हस्की है या फिर बुलडॉग है या फिर क्या, और देयर इज अ लॉट variety of dogs na, Pomeranians and a lot of there means Bhutanese dog is there, a lot of other dogs are there. तो at the end वो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज वो डॉग है, एनिमल स्पीसीज है, और उसमें कौन सा है? वो डॉग है, बट हर एक डॉग का जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है। That's why are in some are those who are living in extreme cold climate are huskies, right? और उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग अलग है, इसलिए कोई हस्की है, कोई बुलडॉग है, कोई भूटानीज डॉग है, या फिर जो भी है, जितने भी टाइप ऑफ आप डॉग्स की जो भी कैटेगरीज होती है, तो इसमें आप क्या देखते हो कि जो डॉग की कैटेगरी डिवाइड होती है वो बेसिकली क्या होती है, और आप अगर इफ यू आर सीइंग इट विजुअली आल्सो, तो आपको अलग अलग डॉग्स में अलग अलग वो मिलेगा आपको, है ना, वेरिएशन यू विल सी। Till now no students has joined the class. So this comes under genetic diversity. Genetic diversity में ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। आई होप कि जेनेटिक डाइवर्सिटी यू गॉट इट। जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग में देख रहे हो, ये तो डॉग का एग्जांपल दीजिए, ह्यूमन बीइंग में देखो, अगर आप देखोगे कि इंडिया के अंदर ही अगर आप देखते हो, ठीक है, सो अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे तो वहाँ मंगोलियन पीपल आर ऑफ मंगोलियंस ना, मंगोलियन रेस। अगर आप साउथ में चले जाओगे तो दे आर द्रविडियंस, राइट। अगर आप नॉर्थ में आ जाओगे तो पीपल आर कॉल्ड दैट दे आर देयर एंसेस्टर्स आर फ्रॉम आर्यंस। तो ये है ऑल आर ह्यूमन बीइंग,
राइट। बट ये क्या है कि स्पीसीज अलग अलग है, राइट। मतलब इनमें, सॉरी, नॉट स्पीसीज अलग है, ऑल आर ह्यूमन स्पीसीज ओनली, बट जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो मंगोलियंस हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, देयर उनका फीचर्स अलग है, कॉम्प्लेक्शन अलग है। आप एक अपीयरेंस के थ्रू भी बता सकते हैं, यू कैन गेट अ जनरल आइडिया। सेम एज विथ गोज विद द्रविडियंस, सेम एज विथ आर्यंस। तो ये इट्स नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, इट्स अबाउट कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। थोड़ा सा जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग हो जाए, जैसे एशियंस आर easily classified from अफ्रीकन स्पीसीज, अफ्रीकन रेस, सॉरी, जो ह्यूमन बींग में अफ्रीकन रेस है या ऑस्ट्रेलियन रेस है या फिर आप एशियन रेस है, ये सब में आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट। बेसिक क्या है तो सब ह्यूमन बींग, बट जेनेटिक और क्रोमोसोमल थोड़ा बहुत डिफरेंसेस, स्लाइट डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। So next is, first we have completed, I hope ki genetic diversity you all got it. And next is species diversity. Species diversity refers to the different type of living organism on the earth. This includes many types of birds, insects, plants, bacteria, fungi, mammals and more. तो देखो अभी स्पीसीज डाइवर्सिटी आ गया, राइट। जैसे अभी हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ा, उसमें हमने एक स्पीसीज को पढ़ा और उसमें क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलता है। जैसे अगर हम होमोसेपियंस, अगर एनिमल्स ह्यूमन बीइंग को पढ़ रहे हैं, दैट इज स्पीसीज क्या है, होमोसेपियंस है, ठीक है। उसमें एशियन रेस का अलग, they you can identify Asian race people, you can identify African race people, you can identify Australian race people, right, you can identify Native Americans। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। नाउ स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या क्या आ जाएगा, बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, मैमल्स एंड मोर। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गए। जैसे बर्ड इज अ डिफरेंट स्पीसीज, insect is another one, plant is another species, bacteria is another one, fungi is another, mammals is another, right? So in species diversity you will see the variation of species in a diversity, in a um, ecosystem. And you will see these species, in species diversity you will see these species, most of them live togetherly, right, like a tree, in a tree there lives, above the tree in the branches there lives small animals like squirrel or birds, right. And inside the soil, in the root, there lives bacteria, microbes. Every organism is different from each other with its genetical structure. These variation in the gene setup of the organism are called as genetic diversity. तो हमने genetic diversity देख लिया है already. Depending on one another to fulfill their needs. It refers to the types of species within a region and it is measured on the basis of the number of species in the region. ठीक है। तो स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को, स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम कैसे मेजर करते हैं कि एक एरिया में कितने स्पीसीज रहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एरिया में अगर वहाँ पे एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, राइट, अगर प्लांट्स है तो इंसेक्ट भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, ह्यूमन बीइंग भी होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज रिच इकोसिस्टम, कि वहाँ का बायोडाइवर्सिटी क्या है, रिच है, ठीक है। जहाँ पे जैसे अगर स्नो वाला एरिया है या डेजर्ट है, वहाँ पे यू विल नॉट फाइंड मच मोर स्पीसीज, राइट। तो वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो इज नॉट दैट रिच। थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
The biodiversity which deals with variation in the ecological area or environment such as desert, forest, grassland, streams and coral reefs etc. is known as ecological diversity. मतलब जो एरिया के हिसाब से जिसमें डाइवर्सिटी में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में जैसे एरिया के हिसाब से चेंजेस आता है, तो इस ये आ जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर। जैसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या क्या आ जाएगा, डेजर्ट एरिया में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी अलग है। फॉरेस्ट में देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन ग्रासलैंड यू विल सी सम अनदर सॉर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्ट्रीम्स में अलग है, राइट। कोरल रीफ्स यानी कि डीप अंडर द सी you will see some other form of biodiversity. So this comes under ecological biodiversity or ecological diversity. Okay, so ecological diversity is defined as the biodiversity which deals with the variation in the ecological area or environment such as desert, forest, grassland, streams and coral reef etc. is known as ecological diversity. In ecological diversity, you will see both biotic and abiotic components, right? जो कि हमने already ecosystem में पढ़ लिया है ना? तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आपको बायोटिक भी मिलेगा एंड एबायोटिक भी मिलेगा। बायोटिक में क्या मिलेगा, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और एबायोटिक में क्या है, नॉन लिविंग वर्ल्ड है, जैसे अर्थ हो गया, सॉइल है, रॉक, एयर, वाटर। These are necessary for the survival of a living organism, but these are not living things, right? जैसे एयर है वो लिविंग नहीं है, बट जिंदा रहने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ज़रूरी है। वैसे ही सॉइल हो गया, वो लाइफ, उसमें लाइफ नहीं है, बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए सॉइल का रिक्वायरमेंट है। सेम गोज विथ रॉक, वाटर, राइट। तो ये किसमें आता है, एबायोटिक बायोडाइवर्सिटी में आता है। Now you will see the biogeographical classification of India. इंडिया में जो हमारा जोग्राफिकल रीजन है उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी के बेसिस में कैसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये हम देखेंगे। इंडिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आप इंडिया में क्या देखते हो, पहले कौन कौन सा रीजन देखते हो आप। वी सी ट्रांस हिमालयन जोन्स, ठीक है, हमको ट्रांस हिमालयन जोन्स दिखते हैं। हिमालयाज, सेमी एरिड एरियाज, वेस्टर्न घाट, डेजर्ट रीजन, डेक्कन प्लेट्यू, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइसलैंड्स, coasts. These all will come under biogeographical classification of India, and we will see one by one, ठीक है। Biogeography is branch of biology that deals with the geographical distribution of plants and animals. जो बायोजियोग्राफी है, बायोजियोग्राफी है, वो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, जिसमें कि हम वी स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कौन से प्लांट कहाँ पे मिलेंगे और कौन सा एनिमल कहाँ पे मिलेगा, है ना, कौन से एरिया में मिलेगा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है जो कि जोग्राफिकल फीचर से डील करता है, और इसमें ये क्या स्टडी करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइन। There are 10 biogeographical zones in India.
India has different climate and topography in different parts and hence is termed as a mega diversity country. India occupies the 10th place among plant rich countries of the world. तो देखो जो इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है ना, इंडिया एक बड़ा कंट्री भी है, मतलब ए लैंड वाइज भी बहुत बड़ा एरिया है, राइट। और ये अपने आप में भी इसका जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत रिच है। सो अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इंडिया के 10 प्लेसेस जहाँ पे भी मतलब नहीं, जितना भी इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखेंगे हम, एंड अलॉन्ग विथ इट इन वर्ल्ड की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया कम्स इन 10th प्लेस इन कंट्रीज विच हैज़ प्लांट रिच, जहाँ प्लांट बहुत ज़्यादा है, जो प्लांट की डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें 10th नंबर में आता है इंडिया वर्ल्ड में, ठीक है। So first we will see Trans-Himalayan Zone. Trans-Himalayan Zone, the Himalayan ranges immediately north of the Great Himalayan Range is called Trans-Himalayan Himalayas. The Trans-Himalayan regions with its less vegetation is an extension to the Tibetan Plateau. This region harbors the high altitude cold desert in Ladakh, Jammu and Kashmir and Lahul Spiti, Himachal Pradesh. It accounts for 5.7% of the country's landmass. It has the richest wild sheep and goat community in the world. तो ट्रांस हिमालयन रीजन क्या है, जो हिमालय रेंज जो कि आप नॉर्थ में देखते हो, ठीक है ना, नॉर्थ साइड में जो देखते हैं हम, जो कि कौन कौन सा एरिया कवर करता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख का रीजन है उसको कवर करता है, और हिमाचल में जो लोहाल स्पीति है, लोहाल स्पीति, ठीक है, ये रीजन, दोनों रीजन इसी में आते हैं, ट्रांस हिमालयन रीजन में आते हैं। और इसमें ये पूरी कंट्री का 5.7% कवर करता है लैंड मास, ठीक है, लैंड का 5.7% एरिया कवर करता है ट्रांस हिमालयन रीजन। और इसमें वाइल्ड शिप और जो गोट है उसकी कम्युनिटी आपको बहुत वैरायटी में दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हिमालयस, ट्रांस हिमालयंस हो गया, अभी ये है नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज हिमालयस। द हिमालयस आर द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया. The entire mountain chain is running from Kashmir in the northwest to Assam in the northeast and is covered 7.2% of the country's landmass. The highest altitude of this area offers a rich biodiversity. तो देखो हिमालय कहाँ से कहाँ तक होता है, हिमालय को एज ए हमारा नॉर्थ में इंडिया की बाउंड्री भी माना जाता है, ठीक है, नॉर्थ में जो हिमालयन रेंजेस है उसको एज ए हिमालयन बाउंड्री भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, कश्मीर से स्टार्ट होता है इंडिया में और कहाँ तक जा रहा है, आसाम तक, नॉट जस्ट आसाम, यहाँ बुक में आसाम लिखा है बट नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक लास्ट तक जाता है, ठीक है। तो ये कितना लैंड एरिया को कवर करता है, 7.2, और हमारा ट्रांस हिमालयंस कितना कवर कर रहा था, 5.7 कर रहा था, और ये जो हिमालयन रेंजेस हैं वो कितना कवर करते हैं, 7.2% ऑफ कंट्रीज लैंड मास, जो कंट्री का लैंड मास है उसका 7.2% हिमालय कवर करता है, ठीक है। और इसका हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से और इतना बड़ा रीजन कवर करने की वजह से, क्योंकि देखो कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश में जाके खत्म हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एरिया को ये कवर कर रहा है। तो इतना बड़ा एरिया को कवर करने की वजह से इसका बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है, ठीक है। इसमें आपको वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स यू कैन सी। और हिमालय का जो फॉरेस्ट है वो आप मोस्टली कैसे देखोगे, बहुत डेंस फॉरेस्ट है जिसमें कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्रास आर देयर, ट्रीज आर देयर, ट्रीज में ओक ट्रीज देखोगे आप, है ना।
और मोस्टली जो हिमालयन रेंज में जो ट्रीज है वो एवरग्रीन ट्रीज है, मतलब उसमें ज़्यादा पतझड़ का सीज़न नहीं आता है, स्प्रिंग सीज़न का इतना अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। ओक, चेस्टनट, कॉनिफर, ऐश, पाइन, देवदार आर एबंडेंट इन द हिमालयस। ये सारे कुछ मेजर प्लांट्स है जो कि आपको हिमालय में, ट्रीज हैं, ये वैरायटी ऑफ ट्रीज है जो कि आपको हिमालय में भरे पड़े मिलेंगे। ठीक है। एनिमल स्पीसीज में क्या मिलता है? वाइल्ड शिप, जंगली शिप मिलेंगे, माउंटेन गोट्स, ये सारे, पांडा, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है, पांडास मिलते हैं, यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, इतना ही है आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी सेमी एरिड एरियाज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
बोल रहे हो? हाँ, थैंक यू यार। आपकी क्लास जब होती है ना इसमें सीबीडीएसई फर्स्ट ईयर में, तो स्टूडेंट होते हैं कभी कभी ना, मोस्टली तो एक या दो होते हैं क्लास, कुछ भी नहीं मेरी क्लास में होते थे, एक या दो होते थे, आज तो कोई भी नहीं था। हाँ, मतलब 45 मिनट तक ले लिया फिर आ गई। आज भी किसी आए हैं क्या? आए है तो नहीं हो सकता। मेरे को वापस में जो सेलिब्रेट हो रही है, हाँ बाद में नहीं आई, इसलिए नहीं काट दिया। करेंगे मैं ट्राई करूँगा। अभी तो नहीं है ऑनलाइन भी हो गया कि जरूरत भी होगी ना। आप शेयरिंग में ये रूल बना दिया ना कि अगर कोई जैसे किसी को कोविड सिम्टम्स है या कुछ मतलब मेरी तबीयत खराब है, अगर वो लोग अपने घर से 3 क्लासेस लेते हैं जिससे उनको कॉलेज नहीं आना है, वर्क फ्रॉम होम है, तो उनके लिए उनको सैलरी मिलेगी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी ऐसे बोल रही थी और शायद अंशिका को भी ऐसे बोला है, आप पहले उनको सैलरी देती है, अब से शायद पता मुझे भी पता नहीं है। मैंने मतलब सारा टाइम पूरा लिया क्लासेस घर से बैठ के, एक दिन भी नहीं छोड़ा, मतलब जितनी भी ज्यादा क्लासेस नहीं थी, मैंने दोनों दिन की दोनों क्लासेस की मैंने सारा लिया। स्टार्टिंग की जिस फर्स्ट वीक की तबीयत खराब थी तब ज्यादा था, मतलब मेरी इतनी घर में भी तबीयत खराब थी, उस दिन तो मैंने 4 क्लासेस भी लिए। अभी बाद में बोलते हैं कि उसमें तो सबकी भी तबीयत खराब है ना, एचआर बनती हुई, और फिर उनकी मदर इन लॉ का भी ऐसे हो रहा है, तो मैंने फिर इनको ज्यादा बॉदर नहीं किया। बाद में जब बात हुई तो पता चल रहा है कि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार, कभी कुछ बताते कभी कुछ बताते, मैंने तो कंफ्यूज हो गई है यहाँ पर। मेरे शायद उनका काटा था लास्ट मंथ में 24 डेज का सैलरी है। अगर कोविड हुआ है तो कोई कैसे आएगा, कैसे आएगा, क्लास ले सकता है। हाँ हम तो चलो आ जाएंगे, फिर क्या होगा मतलब हम सैलरी काट, वो तो प्रोटोकॉल है ना, वो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल बनाया, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये बात ही बोली थी मैंने, पता नहीं अलग ही है यहाँ तो। नहीं वो ज्यादा बैठे हैं लोग, जिनको कोविड हो जाता है वो बताते नहीं, आते रहते हैं। हाँ वो ज्यादा बैठे हैं, जैसे मैं मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे मैं मेरा था, 2 दिन में मैं ठीक हो गई थी, मतलब 3 दिन का बुखार और साथ-साथ हेडेक के साथ मैं ठीक हो गई थी। तो कई बार मैंने तो टेस्ट इसलिए कराया, मेरे को ऐसा लगा था वायरल है, वायरल मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे हस्बैंड पॉजिटिव है और मेरे को तो वायरल ही है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। जब रिपोर्ट आया कि मैं भी पॉजिटिव हूँ, मतलब मैं तो एक टाइप से एसिम्प्टोमेटिक ही थी ना मैं। तो अगर कोई इंसान ऐसे है कि चलो 2-3 दिन तो उसको तबीयत खराब हुई और फिर वो ठीक हो गया, तो सोचा कि मुझे तो वायरल था, मैं ठीक हो गया, फिर वो आ रहा है तो वो बैठे थे। अब घर में रह के इंसान काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा काम नहीं कर रहा है, अगर काम कर रहा है तो दो एडवाइस। मैं तो नहीं किया था, मैं मुझे नहीं पता था।
जगह सैलरी तो देंगे, जब स्लॉट डालते जा रहे देंगे। जो अंशिका मैम फ्री रहेगी वो तो सीधी बोल देती है वो क्लासेस में अपनी सैलरी ही दे रहे, सही बोलती थी वो, नहीं बोलती थी। मुझे ना एचआर सर ने बोला जिस दिन आप लोगे उस दिन का, जिस दिन आपको ऑनलाइन होगा उस दिन का मिलेगा मैम, जिस दिन आप आगे जा रहे हैं तो आपका कट जाएगा। आपको सीधे ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोला था सर ने कि जैसे आप जिस दिन आपको ऑनलाइन स्लॉट है उस दिन का अगर आप घर से क्लास ले रहे हो तो आपको मिलेगा, और जिस दिन आपको कॉलेज जाना है अगर आप कोविड की वजह से कॉलेज नहीं आ पाओगे उस दिन की आपकी सैलरी कटेगी, ऐसा मुझे बताया था। और मुझे ना जो है उसकी सैलरी आई लास्ट में, उसका कुछ समझ ही नहीं आया मुझे कि क्या किया मैंने 23rd को लास्ट को आई थी और मेरा ना 24 डेज का सैलरी बना है बस, तो क्या फायदा हुआ? 23rd लास्ट डे को मैं आई थी कॉलेज तक, फ्राइडे को आई थी मैं। उसके बाद से तबीयत खराब हुई, नहीं आ रही थी मैं, और क्लासेस ले रही थी और इन लोगों ने जो मेरा सैलरी है वो 24 डेज का मिला है, और मैंने एक दिन का दे दिया, मतलब हाँ दिया वाले सर तो 20 दिन नहीं देते जितना दिन का आएगा, सारा दिमाग तो क्लियर होता है, ऐसे मैंने सारा दिन का क्लास लिया। मुझे बात कर रहे हैं यार, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मतलब ऑनलाइन रिपोर्ट्स और ये सब में मार्क्स काटती है ना, ये अल्टीमेट हेडेक है और कुछ नहीं है। कौन सा तो इतना सारा सारा चेक करते हैं मुझे,
हाँ हाँ अच्छे से है। उसने देखा होगा ना आपको। बताओ। और उसका ड्राइंग ड्राइंग अच्छा होगा फिर उसका। नहीं तो इसमें तो नेल पेंट मतलब मेरे से खुद से भी अच्छे से नहीं लगता, नहीं तो इतना छोटा बच्चा है वो तो। हाँ हाँ, अब वो बच्चे के हिसाब से उसने। बताओ। वो आपको देखती होगी ना, वो आपको देखती होगी ना। और आपको भी नेल पेंट का शौक है तो वो हमेशा मोस्टली देखती रहती होगी यही चीज मम्मी ज्यादा करती है करके। देखो। लड़कियों को बड़ा शौक होता है। सही है, अभी थोड़े टाइम बाद तो सब कुछ करेगी, आपको सारी चीज ट्राई धीरे धीरे। अरे पढ़ लेते हैं यार, पढ़ के किसी ने क्या उखाड़ लिया पढ़ा। पढ़ पढ़ के हमने क्या कर लिया। बाद में मैं तो बोलती हूँ जो बच्चों को ना वो होना चाहिए, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए कि वो हो जो प्रेजेंटिव होते हैं ना बच्चे, जो जहाँ तहाँ सब बोलने वाले, तो वैसा होना चाहिए मैम बच्चों में। हाँ हाँ, उसको जो इंटरेस्ट होता है, जो उसको अच्छा लगता है ना, पेंटिंग अच्छा लगता है, जो उसको मतलब उसको जो अच्छा लगता है वो सब कराना। पढ़ने पढ़ने वाले बच्चे का कुछ नहीं होता, भाड़ में जाए। मैं तो गुस्सा आता मुझे तो, बचपन से पढ़ पढ़ के क्या कर लिया, कुछ नहीं। उल्टा ऐसे दब्बू टाइप के बच्चे हो जाते हैं आजकल, तो वो चलता भी उन्हीं का है जिनका पर्सनैलिटी अच्छा है, या फिर जो बोलने में कुछ थोड़ा इनोवेटिव टाइप के हो।